Hello everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 2A and we are doing question number 9. So let's see what they are saying in this question. Convert the following list of fractions into their equivalent forms with the same denominator. ओके सो इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं जो उन्होंने हमें गिवन फ्रैक्शंस दी हैं हमें उनको इक्वलेंट फॉर्म्स में बदलना है विद द सेम डिनोमिनेटर. इन सब फ्रैक्शंस का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. सेकेंडली दे आर सेइंग हेंस अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. जब हमने वंस वी विल बी डन विद मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम तो फिर हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना भी है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जैसे असेंड का मतलब है चढ़ना, मतलब स्मॉलर टू बिगर नंबर. सो वी हैव टू अरेंज ऑल दीज फ्रैक्शंस फ्रॉम स्मॉलर टू द बिगर फ्रैक्शन. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 1/6, 4/9, 2/3, 11/18 और 5/12. इन सब के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. हम सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. तो हमें ये देखना है कि वो क्या नंबर होगा जो हमें इसका डिनोमिनेटर को बनाना है. सो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स and that's how we will find out what all fractions should have the denominator. Start taking the LCM. 6, the second number is 9, then 3, then 18 and then 12. मैं इन सब के डिनोमिनेटर्स जो है उनका LCM ले रही हूँ and that's how I will find out कि मेरा वो नंबर क्या होगा जो हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होना चाहिए. So I will start dividing the numbers with the lowest prime number which is 2. 2 3s are 6. 9 will come down as it is because 9 does not come in 2 table. 3 भी नहीं आता 2 के टेबल पे, so we are writing 3 as it is. 2 9s are 18 and 2 6 are 12. Yes, still there is 6 which we can divide by number 2. So again I'm dividing the numbers by 2. 3 will come down as it is. 9 ऐसे ही आएगा. 3 again 9 and 2 3s are 6. Now all these numbers are divisible by number 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Again I will divide things by 3. 1 1 1 will come down as it is. 3 1s are 3 and now LCM is 2 into 2 into 3 into 3. So 4 into 9 and 36. इसका मतलब है 36 should be the denominator of all fractions. हर fraction का denominator 36 होना चाहिए. So let's see how to do it. 1/6. I will multiply this by 6 to get the denominator 36. तो I have to multiply the numerator with 6 as well. इसी तरह 4/9. 9 को 36 बनाने के लिए I will multiply it with 4 and I have to multiply the numerator with 4 as well. 2/3. So 3 को 36 बनाने के लिए I have to multiply with 12. And 11/18. 18 को 36 बनाने के लिए I have to multiply it by 2. And lastly 5/12. To make this 12 36 I have to multiply it with 3. Now the fractions will be 6/36, 16/36, 12 2s are 24/36 and 22/36, 15/36. That's how we will make their denominator same. तो जो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि fractions into their equivalent forms with the same denominator, so we have done this part. हमने इन सब के denominators को same कर दिया है and that's how these 1/6 and 6/36 is the equivalent fraction. We multiplied this fraction by 6 and that's how we get the equivalent fraction.
and we multiplied this side by 4, this fraction by 4 to get the denominator 36. तो ये इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ये इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन है. हमने इनको इक्वलेंट फ्रैक्शन में भी बदला, बट एट द सेम टाइम हमने इनके डिनोमिनेटर को भी सेम किया. Now we will do the second part where we have to arrange them in ascending order. अब हमें इसे ascending order में convert करना है, तो let's see how to do it. Ascending order means arranging them from smaller to the highest one. So हम सबसे पहले the denominators are same, तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. द सबसे स्मॉलेस्ट वन इज 6 ओवर, सो वी विल राइट आंसर फ्रॉम इन द ओरिजिनल फ्रैक्शन. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन, सो इसकी ओरिजिनल में है 1/6. 1/6 इज़ द स्मॉलेस्ट वन. उसके बाद 6 के बाद उससे बड़ा नंबर है 15/36, राइट, क्योंकि 15 के बाद आएगा 16, देन कम्स 22 एंड देन कम्स 24. सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, हमने सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है. विच वन विल बी द स्मॉलर, दैट फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलर वन. वेयर द न्यूमरेटर इज़ द हाइएस्ट वन, दैट फ्रैक्शन इज़ द बिगर वन. तो 1/6 इज़ द स्मॉलेस्ट वन. इसके बाद ये वाली फ्रैक्शन वी विल राइट आंसर इन ओरिजिनल. सो आफ्टर दैट 5/12 विल कम. Then comes this fraction, then comes 4/9. And after that this 22/36, मतलब अगर ओरिजिनल में जाएं तो this one 11/18. And in the end 24/36 is the highest one, और अगर ओरिजिनल में जाएं that is 2/3. That's how we will arrange these fractions in ascending order. हमने इससे ये जो डिनोमिनेटर्स हमने सेम किया है, इससे हमारी वर्किंग में हेल्प होगी, बट आंसर हमें हमेशा ओरिजिनल में ही लिखना है. इसको ही हमने बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी फ्रैक्शन विल कम फर्स्ट एंड विच फ्रैक्शन विल कम इन द एंड. So we are done with this question number 9, and we will do now question number 10. Question number 10 में they are saying for the following list of numbers convert each number to an improper fraction in its simplest form where applicable. हमें उन्होंने कुछ fractions दी हैं और हमने इन fractions को improper fraction में बदलना है. There we can see this is a mixed number 3 whole 4/5. ये भी एक mixed number है and this is also a mixed number. हमें जितने भी mixed number हैं और बाकी fraction सबको improper fraction में बदलना है, and we have to simplify them as well. This is the first part of this question number 1. और question number 10 का second part है arrange numbers in ascending order. और अगेन इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी बदलना है, इस फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी बदलना है. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 5 3 ज़ 15, 15 में 4 ऐड किए, इट विल बी 19/5. राइट, वी आर डूइंग द सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट. द सेकेंड वन इज़ 47/15. Third one is 32/10. 3 3s are 9 and 2 11/3. 15 3s are 75 and 75 में हम ऐड करेंगे 15, इट विल बिकम 90/25. हमने इन सब को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया है. नाउ वी विल सी कि कौन सी सिंप्लीफाई होती हैं और कौन सी सिंप्लीफाई नहीं होती. तो 19 and 5, 19 is a prime number, 5 is also a prime number, so they will not get simplified by any number, so it will come down as it is. ये further simplify नहीं होती. 47 और 15, 47 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी simplify नहीं होगा, so 47 and 15 will come down as it is. 32 and 10, these both numbers are divisible by number 2, तो हम इसको 2 पे सिंप्लीफाई करेंगे. 2 पे सिंप्लीफाई करने से वी विल गेट द आंसर 16/5.
राइट। सो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। फर्दर ये 5 के टेबल पे 5 के नंबर पे 16 डिविजिबल नहीं है, सो 16/5 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। देन कम्स 11/3। 11 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, एंड दे बोथ विल नॉट सिंप्लीफाई ईच अदर। अब आते हैं 90 और 25 की तरफ, तो येस दीज नंबर्स कैन बी सिंप्लीफाइड बाय नंबर 5. So 5 ones are 5 and 5 eights are 40, 5 fives are 25. If I simplify these numbers by number 5, and I will get the answer 18/5. That's how this is a simplified fractions, simplified form of fractions. हम in fractions को further simplify नहीं कर सकते. So this is it. First part is done, where we have to convert the given fractions into the improper fraction and then we have to simplify. तो हमने उस process को complete कर लिया है. Second process में they are saying, second part में they are saying arrange numbers in ascending order. हमें given fractions को ascending order में बदलना है. तो अब हम वो वाला part start करेंगे. सबसे पहले मैं इनकी forms को change करूँगी. इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर से मिक्स नंबर में लेके आऊँगी. इट विल बी ईजी फॉर मी टू मेक अ कंपैरिजन. देन असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है, राइट. तो सबसे पहले ये जो हमारी फ्रैक्शन है, द फर्स्ट वन इज़ 19/3 होल 4/5. द फर्स्ट वन इज़ 3 होल 4/5. सो आई एम राइटिंग हेयर 3 होल 4/5. एंड द सेकेंड वन इज़ 47/15. अगर इसको मैं मिक्स नंबर में कन्वर्ट करूँ तो देखें इसको कैसे करेंगे. 47 को 15 से डिवाइड किया, 15 3 is 45 and the remainder is 2. So this fraction will become, this 47/15 will become 3 whole 2/15. अब मैं 32/10 को भी मिक्स नंबर में कन्वर्ट करूँगी सेम प्रोसेस से. ये देखें इसको कैसे करेंगे हम. 32 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 is 30, रिमाइंडर विल बी 2. तो हमारी 32/10 जो है इट विल बिकम 3 whole 2/10. उसके बाद वी विल कन्वर्ट दिस 3 whole 2/3 विच इज़ ऑलरेडी इन अ मिक्स नंबर. सो इसको 3 whole 2/3 एंड द अदर वन इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द मिक्स नंबर. तो हम उसको भी ऐसे ही लिखेंगे 3 whole 15/25. जो ऑलरेडी मिक्स नंबर थी उनको मैंने मिक्स नंबर में ही रहने दिया है. जैसे ये देखें दिस वन एंड दिस वन. और जो दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में थी उनको भी मैंने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है. राइट नाउ ऑल फ्रैक्शंस हैव द 3 एज अ होल नंबर. जितनी भी हमारी फ्रैक्शंस थी उनका 3 होल नंबर था. अब हमने बाकी को कंपैरिजन करना है तो हम इस पार्ट को ओमिट कर देंगे. हम होल नंबर को थोड़ी देर के लिए ओमिट कर देंगे. दिस पार्ट, दिस इज़ सेम फॉर ऑल फ्रैक्शंस. तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ओमिट कर देते हैं. हम इसको देखते हैं. सो 4/15, 4/5, this is 2/15, 2/10, 2/3, 15/25. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड सिंप्लीफाई दिस पार्ट. 4/5 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम. इसको इसी तरह लिखते हैं. 2/15 को भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. येस 2 and 10 को हम कर सकते हैं. सो दिस फ्रैक्शन विल बी, अगर मैं इसे 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 ones are 2 and 2 5s are 10. दिस फ्रैक्शन विल बी 3 whole 1/5. 3 whole 2/3, 2/3 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. 15 और 25 को 5 से कर सकते हैं. सो इट विल बी, आई एम कटिंग दीज नंबर्स, आई एम डिवाइडिंग दीज नंबर बाय नंबर 5. तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 3 whole 3/5. ठीक है. अब हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया सारी फ्रैक्शंस को. अब हम थोड़ी देर के लिए ये सारे 3 होल नंबर्स को इग्नोर करेंगे और इन जो ये वाले फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो पार्ट है 4/5, इसका 2/15, इसका 1/5, इसका 2/3 और इसका 3/5, इन सब के डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे ताकि हमारे लिए फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना आसान हो जाए.
So we will make all numbers with the same denominator, which will the same denominator will be 15 for all of them. तो मैं इन सब के डिनोमिनेटर्स को 15 करूँगी. So 4/5 to make this 515 I will multiply it with 3. 2/15 is already 15 with denominator with 15. 1/5 में 15 करने के लिए I have to multiply this by 3 and it 2/3. To make this 315 I will multiply it with 5 and 3/5 I have to multiply it with 3, right? तो ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम. ये बन जाएगी 3 होल, 3 को मैं वापस लेकर आई हूँ, 3 होल 12/15. It will be 3 whole 2/15. It will be 3 whole 3/15. ये 3 मैं वापस लेकर आई हूँ. It will be 3 whole 10/15 and similarly 3 whole 9/15. अब हमारे पास सब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है. अब हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान है कि विच फ्रैक्शन इज़ बिगर, विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर. जब भी आपने फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना हो तो हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाए. अब देखें, सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, सबके होल नंबर सेम हैं, 3 3 3 3. सबके डिनोमिनेटर हैं 15 15 15. सो वी विल सी कि किस नंबर का, किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बिगर है तो वो फ्रैक्शन भी बिगर होगी, जिसका स्मॉलर होगा न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगी. अब हमने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ से हम असेंडिंग ऑर्डर ख़त्म करते हैं बिकॉज वी आर अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर नाउ. असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो सबसे पहले छोटा नंबर है हमारे पास 3 होल 2/15. आंसर हम हमेशा ओरिजिनल में लिखेंगे. पहले मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ, 3 होल 2/15. देन कम्स 3 होल 3/15. 2/15 से बड़ा 3/15 एंड आफ्टर दैट वी हैव 9 3 होल 9/15 एंड आफ्टर दैट वी हैव 3 होल 10/15 और उसके बाद हमारे पास इन द एंड वी हैव 3 होल 12/15, राइट. अब हम इसको ओरिजिनल में लिखेंगे. तो सबसे पहले हमारा 3 होल 2/15 देखें ओरिजिनल में क्या है. ओरिजिनल में क्या है, आई विल टेक इट. यस, 3 होल 2/15 एंड ओरिजिनल में क्या है, दिस इज़ 47/15, राइट. 47/15. तो हम इसको सेट करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ 47/15. दैट्स हाउ यू विल सी कि कौन सा नंबर कहाँ आना है. 3 होल 3/15 कहाँ था हमारा, ये है 3 होल 3/15. और अगर ओरिजिनल में देखें तो ये था 3 होल 2/10. तो हम इसे लिखेंगे 3 होल 2/10, राइट. उसके बाद हमारा आ जाएगा अगला नंबर विच इज़ 3 होल 9/15. दिस इज़ द लास्ट वन, 3 होल 9/15. और अगर ओरिजिनल में जाएं तो इट विल बी 3 होल, या इट विल बी 3 होल 15/25. तो अब हम थर्ड वाला लिखेंगे 3 होल 15/25. 3 होल 15/25, राइट. इसके बाद हमारा नंबर है 10 और दिस वन. और अगर ओरिजिनल में जाते जाएं 3 होल 2/, दिस इज़ 3 होल 2/3. तो हम देखेंगे 3 होल 2/3 and that's how this is the last part is 3 होल 12/15 which is the first one. तो जब हम ओरिजिनल की तरफ देखते हैं तो it is 3 होल 4/5. हमने सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया. आंसर हमने ओरिजिनल फ्रैक्शंस में दिया है जिसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था. आप अपनी वर्किंग से देखेंगे कि
कौन सी फ्रैक्शन को रेफर कर रहा है, कौन सा आंसर, एंड दैट्स हाउ वी विल राइट आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर. द स्मॉलेस्ट विल कम फर्स्ट एंड द हाइएस्ट और द बिगर वन will come in the last in ascending order. So that's how we are done with question number 10 of exercise 2a, and I hope you like this video and you get all the concept. Thank you so very much for watching the video, and don't forget to subscribe, like and share. Solve with Aman.